Good evening, everyone. So, we are continue with the second episode of BPSC TRE 2.0. In the first episode, we discussed that was an introduction, so that we have discussed 10 questions. And as per the demand of the student, the videos was liked by so many students, and they requested that, sir, please create more videos so that should be helpful for us. So in the same manner or in the same regard, we are going to discuss the next question. First of all, why we have made this a strategy, it is also very important. We have made this a strategy before starting the classes, that first of all, you should know the depth of the river. Before entering to the water, we must know the depth of the water. And while going to discuss the questions that has been already comes in the examination, people will come to know that what type of questions are coming in the exam, and by which way and which of the topic we will have to touch. What is the level of the question, and with which extent we will have to discuss the question. That is also very important. As far as the computer science syllabus is concerned, it is the combination of the fundamentals of computer, C++, and MySQL, and little bit part of internet. So the first 10 to 20 questions are based upon computer fundamental. As I'm getting this, the next question that I'm going to discuss, the question is a computer program that translates high level language program into machine language program, a statement by a statement is called. In the previous video, what I suggested you, the computer is a kind of machine that only understands 0101, 0101, means binary language. While we are going to produce any kind of other way to input our instructions, ultimately computer translates it into the 0101. Computer automatically not capable to translate this. For that, we have the need of the translator. Like in the first generation, there was no need of any translator, because B was writing the 0101 and computer was using no translator, because 0101 was automatically converted by the computer itself. But when we started the second generation of the language, that is known as assembly level language. So in assembly level language, we are supposed to write the codes into the 0101. We are supposed to write the codes into mnemonic symbols, not 0101. So mnemonic symbols should be converted into the 0101. That is why in assembly level language, there was the requirement of an assembler. What is the role of the assembler? Assembler is capable to convert all the mnemonic symbols into the 0101 and all the 0101 into the mnemonic symbols. But when we enter to the high level language, we receive two types of translator. One is called compiler and another is called interpreter. Compiler converts the whole program at one go. It will check top to bottom the code. If any error occurs over there, it will produce a message on the certain lines there is an error. So this is the role of compiler. As far as the interpreter is concerned, interpreter translates the program a statement by a statement, line by line. And this is the question. A computer program that translates high level language program into machine language program, a statement by a statement is called. Now I am not going to give the option. You think the option. Recently I have given the answer. I am not going to give you the right answer. I just want to listen the answer from you people. Interpreter, very good beta, very good. Without, if you are confirmed with the theoretical sections,
undoubtedly without watching the options you will be in the position to take the correct option. So options are given here: compiler, loader, interpreter, are more than above or none of the above. So the correct answer is interpreter. So sequentially the questions, one question was given from the assembler, another question was given from the compiler, and previous question was given from the loader also, that I have discussed in the previous video. Now the second question is there: which one of the following is not an operating system? We know very well that computers are having two types of software. One is called system software, another is called application software. So system software and application softwares are the two sides of a coin. They are the two sides of a coin. While going to see the coin, one side is the head, another side is the tail. Similarly, the computer runs if the good combination of hardware and good combination of the softwares it have. So software means, system software means what? Operating system, language processor, interfaces, and integrity softwares, that are the part of system software. So what is the role of operating system? First of all, you should know, without of an operating system, nobody is in the position to operate the computer properly. You can think that just I'm going to produce a little bit example in front of you. Suppose you are having the ticket of train. You want to catch a train, but unfortunately when you reach to the station and want to catch the train, there was the unavailability of the platform. Platform वहाँ पे था ही नहीं. So where you will stand and where you will, how you will catch the train. So just like the platform is important part for catching a train, the same way operating system is important to work with a computer. So there are lots of operating systems, like it supports two types of interfaces. कोई भी operating system होगा वो दो तरह के interfaces को support करता है. कौन कौन? Very good. Very good. So that is called GUI and CUI. Now this is the interface. What is interface? You know, like if I'm going to communicate you within English, if I'm going to communicate you with हिंदी, अगर मैं आपसे हिंदी में जुड़ रहा हूं तो वो एक माध्यम हुआ आपसे जुड़ने का. इंग्लिश में अगर आपसे जुड़ रहा हूं, ये भी एक माध्यम हुआ आपसे जुड़ने का. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, इट सपोर्ट्स टू इंटरफेसेस. नाउ देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइक सिंगल यूजर सिंगल टास्कर, सिंगल यूजर मल्टीटास्कर, मल्टी यूजर मल्टीटास्कर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है. द फर्स्ट ऑप्शन इज लिनक्स, LINUX, लिनक्स. यू नो वेरी वेल दैट लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स भी हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है. वाई ओपन सोर्स? आपको ये भी पता है, प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले के पहले वीडियो में जो डेमो क्लास हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाया था, उसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने डिस्कशन करा था, जिसमें हमने बताया था कि वी आर हैविंग द वेराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. You need not to make the payment. Nowadays in Bangalore, not only in Bangalore, in India also, people are frequently using the Linux. Why they are using the Linux? Because of that it is very safe and secure, and people are not required to make any kind of payment for that. तो Linux तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ये आंसर नहीं होगा. Windows, very popular operating system. Oracle, mind it, Oracle will be the correct option. Why? Because Oracle is not an operating system, it is a database. It is a database. Next question. See, a software that runs on a computer hardware and serve as a platform. क्या बात है, क्या बात है. अभी अभी प्लेटफॉर्म की बात हम लोग कर रहे थे और प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ गया, तो मुझे लगता है कि अब आपको ऑप्शन टिक करने में परेशानी भी नहीं होगी.
क्वेश्चन है कि अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर and serves as a platform for other softwares to run is called system software, operating system, application software. More than one of the above and blah blah blah. Now, two options we have. One is the system software and second is the operating system. Which should be the correct one? System software. You? Operating system. This time operating system is the correct one. Why? Beta, system software is not only the part of operating system, it have the combinations of the language processor, it have the combinations of utility softwares. So अगर वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता और वहां पे केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता या कुछ और भी होता, तब वहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर सही है. बट एमसीक्यू का मतलब होता है कि द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शंस यू विल हैव टू हिट. तो दिस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल? सिस्टम टूल का मतलब समझते हो? सिस्टम टूल का मतलब दैट इज इनबिल्ट, जो सिस्टम का टूल है, जो सिस्टम के क्वालिटी को इनहेंस करने में उसकी मदद करता है. लाइक ScanDisk. व्हाट इज ScanDisk? It is just for scan the device. Format is the option by which we can format the entire system. Folder, more than one of the above, none of the above. So folder is not the part of system tool. System tool का ये part नहीं है. Folder, it is up to us whether we want to create the folder or not. Why do we create the folder? देखो, पुराने वर्जन में जब हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, सो दैट टाइम वी आर सपोज टू क्रिएट द डिक्शनरी, एंड इन द विंडोज वर्जन और इन द न्यू वर्जन्स ऑफ द कंप्यूटर वी पीपल आर सपोज टू क्रिएट द फोल्डर. फोल्डर इज वेरी सेम एज वी हैव क्रिएटेड द डिक्शनरी इन द Microsoft DOS. So folder is what? Folder is a cover. Folder is a kind of place where we can store folder inside the folder, or lots of files we are capable to create under this. So the perfect answer is folder. Next, the key oblique keys used to delete a file without allowing it to store in recycle bin each are. अब देखो, आप किसी फाइल को गलती से डिलीट करते हो तो द सिस्टम प्रोवाइड्स यू वन चांस टू रीस्टोर इट. आपने गलती से किसी फाइल को डिलीट करा तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली मूव टू द रिसाइकल बिन. ये रिसाइकल बिन पे पहुंच जाता है. और अगर वहां से भी डिलीट कर दिया तो फिर ये वहां से भी गायब हो जाता है. हाँ, इन स्पेशल प्रोविजन देयर इज द पॉसिबिलिटी कि जब तक हमने सिस्टम को फॉर्मेट नहीं किया है तब तक हम वहां से उसको रिकवर कर सकते हैं. रिकवरी टूल के मदद से जो डिलीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल सॉफ्टवेयर उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं. लेकिन ये आसान नहीं है, इसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस करते हैं. बट इफ इंटेंशनली यू वांट टू डिलीट द फाइल और द फोल्डर, सो फॉर दैट वी विल हैव टू यूज डिलीट, shift plus delete, control plus delete, more than one or the above, and none of the above. Which one should be the correct one? Shift plus delete is the correct option. If you want to intentionally delete the file, press shift and delete, and by this you will see that the file will automatically remove. Okay, next question that was in TRE 2. The three main component of a digital computer system. सर देखो, जो क्वेश्चंस का लेवल है, हम लोग जब TRE 1 के साथ इस प्लेटफॉर्म से राजधानी कोचिंग से जुड़े थे, एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी प्रोड्यूस्ड 100% रिजल्ट ओवर देयर. 100% result. In TRE 2 also, the percentage of the passing was very good with this platform. And we are not claiming that we people are only specialized for this. Anyone can do this. But we have some planning. We are having some strategy. आप जो questions देख रहे हो, questions का जो level देख रहे हो, it is not very tough.
यू कैन इजिली अचीव इट। कम से कम स्कोर करने में ये आपकी मदद करेगा। याद रखिएगा, C++ और MySQL आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा, लेकिन अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट्स लेके आएंगे जिनका कंप्यूटर फंडामेंटल जो 10 से 20% का जो क्वेश्चंस है उसमें आप अच्छा करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? सो कोशिश आपकी हो कि 80 में कम से कम हम 50+ जाएं। 50+ मतलब 60 से बिलो हम ना रहें, तभी आप प्लेस होल्ड करिएगा। और प्लेस होल्ड करने के लिए फंडामेंटल का बढ़िया होना, अच्छा होना, ये बहुत जरूरी है। तो 3 main components of a digital computer system are: memory is required there, input output is there, DMA is there, ALU is there, CPU is there, memory is there. Memory is there, CPU is there, and input output is there. More than one of the above, none of the above. Which should be the correct one? अगर आपको कोई कंप्यूटर दे रहा है एंड सपोज इट डोंट हैव द मेमोरी, विल यू परचेज? आपको कोई बोले कि एक कंप्यूटर आपको परचेज करना है और 5000 का डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इट डोंट हैव द मेमोरी, विल यू परचेज? आपने एक मूवी देखी थी, वो कौन सी मूवी थी आमिर खान की? नो बेटा, नॉट 3 इडियट्स। इन विच वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था उसका। गजनी, दैट्स राइट, गजनी। माय गॉड, सो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। आपका जीके जीएस भी बहुत अच्छा है, अप टू डेट है, दैट्स गुड। तो द नेम ऑफ द मूवी वाज गजनी, और उसमें जो हीरो था आमिर खान, आपने देखा था कि वो कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली जाती थी। तो द पर्सन वाज यूजलेस एट दैट टाइम, उसको पता ही नहीं था कि हम क्या हैं। Same thing with the computer also. If we are going to purchase a computer and suppose it don't have the memory, so it will be useless. तो पहला कंपोनेंट तो बहुत जरूरी है, वो है मेमोरी। दूसरा है सीपीयू। सीपीयू आजकल बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, अगर मैं भी इस पोडियम और इस डेस्क के नीचे जाऊंगा तो मैं भी उसको सीपीयू ही बुलाऊंगा। बट यू नो, सीपीयू इज द स्मॉल पार्ट that is shifted with the motherboard. CPU एक छोटा सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरा का पूरा एक कैबिनेट है, लेकिन मेन आपका प्रोसेसर जो है वो CPU ही है। उसी को बोलते बोलते लोग CPU 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 कहते हैं। और उसके बाद सब कुछ आपके पास है, बट यू डोंट हैव द वे टू इनपुट योर इंस्ट्रक्शंस। कोई आदमी ऐसा है जो बोल ही नहीं सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो लिख सकता है, और ना तो कुछ आउटपुट उसको दिख रहा है, तो यूजलेस है ना। तो 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका हुआ वो है मेमोरी, जो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, या स्टोर किए हुए इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। इनपुट है, आउटपुट है, और एक है सीपीयू जो उसको प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन। बिट का मतलब समझते हो? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कंसिडर्ड टू बी द बिट, उसको हम लोग बिट कहते हैं। और कहते हैं 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निब्बल, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 megabyte is equals to 1 gigabyte, 1024 gigabyte is equals to 1 terabyte, 1024 terabyte is equals to 1 petabyte। तो पेटा, एक्स्ट्रा, जेटा, योटा, ब्रोनोटो, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे मिनिमम जो होता है वो किस में होता है? कैच में होता है, रजिस्टर में होता है, कि मैग्नेटिक टेप में होता है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप समझते हो? मैग्नेटिक टेप मतलब मेमोरी को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मीडिया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आपका होगा उसको मिनिमम हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मीडिया, एक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडिया, और एक को हम लोग कहते हैं मेमोरी स्टिक, जिसमें आपका पेन ड्राइव और कैमकॉर्ड का कार्ड आता है। ऑप्टिकल में आपका सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आता है, और मैग्नेटिक टेप में आपका आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो बहुत पहले यूज करते थे, आजकल हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं।
या वीडियो कैसेट जो पहले आता था, देखते थे उसमें टेप रिकॉर्डर पे जो कैसेट आता था रोल रील बना हुआ, वही मैग्नेटिक टेप था, वही मैग्नेटिक टेप था। तो आजकल भी लोग मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी जो टेली कम्युनिकेशंस होती है, वो देखिएगा कि ट्राई की तरफ से ये ऑर्डर होता है कि किसी भी फोन को कंपनी कम से कम महीने 2 महीने तक स्टोर करके रखती है। आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है वो स्टोर्ड रहता है कंपनी के पास। अगर गवर्नमेंट लीगल एक्शन के लिए किसी का वॉइस या किसी का फोन चाहिए, उसको कोशिश करता है, अगर सही टाइम और ड्यूरेशन उसको पता हो और नंबर उसको पता हो, तो उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक टेप। फिर है आपका टेरा। तो टेरा का मतलब क्या हो गया, टेरा बाइट की बात कर रहा है, तो उसका यूनिट बता रहा है 2 to the power 20, 2 to the power 40, 2 to the power 30, more than 1 or above, none of the, तो 240 will be the correct option। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड लोडर। वो लोडर ही है जो प्राइमरी मेमोरी से डेटा जो आप डिमांड करते हो, जो बायोस के अंदर, रूम के अंदर, उसको लोड करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है। फिर है द पोस्टफिक्स अब देखो, अब बुलियन अलजेब्रा पे हम लोग चले आए। कह रहा है कि द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्लस ए बी माइनस सी डी इज। तो इसमें क्या करेगा, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब को डिसेंडिंगली यूज करेगा। उसमें जितना भी ऑपरेटर उसके साथ यूज किया, ऑपरेटर को एक जगह कर देगा। और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर जो पहले लगा है उसको बाद में ले आएगा। और पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ऑपरेटर्स को ले आएगा और फिर वेरिएबल्स को लिखेगा। ठीक है, फिर कहता है which data structure is used to convert infix notation to postfix notation। ऑप्शन है stack, queue, tree, more than one of the above, none of the above। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक जो होता है, स्टैक वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फीफो, और क्यूब जो वर्क करता है वो वर्क करता है किस पे, लीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो टिकट काउंटर पे कोई व्यक्ति लगा है क्यू में, और ये मान लो टिकट काउंटर है, तो जो पहले यहाँ क्यू में है वो पहले टिकट लेगा और फिर यहां से निकल जाएगा, फिर यहां से निकल जाएगा। लेकिन लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे खाने का प्लेट है, जो सबसे नीचे रखे हो वो सबसे लास्ट में आएगा। यानी खाने का प्लेट पहले नंबर पे यहां रखे थे, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। 7th नंबर पे जो प्लेट हम लोगों ने रखा वो पहले बाहर आएगा, और जो फर्स्ट पे रखे थे वो 1 पे आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशंस टू पोस्टफिक्स नोटेशन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टैक। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट ऑफ द इज कॉल्ड, ऑब्वियस अभी बताया तुमको, लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज क्यू। क्या बोल रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रियर, मतलब लास्ट में आया। लास्ट इन वर्ड को समझिएगा, मैं यहां कुछ भी लिख रहा हूं उसका मतलब है, उस सबको समझते चलिए। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रियर, बैक से ऐड हुआ, एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड, ऐड हुआ लास्ट से और डिलीट हुआ फ्रंट से। और लीफो में एक ही रास्ता होता है, एक ही होगा, फ्रंट से ही सब कुछ काम करेगा। मतलब इसमें एक टर्म आता है, उसमें अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का मतलब क्या हुआ, ओवरफ्लो का मतलब द प्लेस इज नॉट वैकेंट एंड स्टिल वी वांट टू इंसर्ट सम डाटा, so that will be overflow. Underflow means what, suppose data is not available over there and we want to remove it from there, so that is called
अंडरफ्लो, ये टर्म है, याद रखिएगा। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्यूब डाटा स्ट्रक्चर यूजेस, क्यूब डाटा स्ट्रक्चर यूजेस, क्यूब किसको यूज करता है? लीफो को और फीफो को, लीफो को, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वेन एवर। कंस्ट्रक्टर समझते हो? नहीं समझते हो? ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि द कंस्ट्रक्टर इज द विद द नेम ऑफ इट्स क्लास। जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा है क्लास एक्स वाई, सपोज दिस इज द क्लास एक्स वाई। तो इफ दिस इज क्लास एक्स वाई, तो अब ये अगर एक्स वाई के साथ ऐसे लिख रहे हो तो द एक्स वाई विल बिकम कंस्ट्रक्टर। एक्स वाई क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टर बनेगा। और कहते हैं कि द कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज विद द नेम ऑफ इट्स क्लास। कंस्ट्रक्टर की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि ये दिखने में आपको फंक्शन जैसा ही लगेगा। आप मान लो कोई फंक्शन बना रहे हो तो कैसे बनाते हो? मान लो हमने जहां के यहां से बोला वाइट बज, तो ये आपका फंक्शन हुआ एंड इट इज बेस्ड अपॉन नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। This function is based upon no argument, no return. But xy के सामने भी ये parenthesis है। Why? Because this is the constructor. एक क्वेश्चन आता है कि if we want to compare between the method and a constructor, we will found that the body of the function or the constructor will be little bit same. But दोनों में एक difference होता है। एक क्या, बहुत difference होता है। क्या difference होता है? The constructor will always with the name of its class. A constructor can be parameterized or non-parameterized. मतलब इसके अंदर पैरामीटर हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे जाके लिख दें एक्स वाई INT x और INT y, इट इज ऑल ओके। ये पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है। But a constructor can never have the return type of data, even void. फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप ऑफ डेटा आप void यूज कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ आप रिटर्न टाइप ऑफ डेटा यूज नहीं करोगे। एंड इन अ प्रोग्राम, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, if we people are not going to create the constructor, the program will automatically create a constructor. हम कंस्ट्रक्टर बनाए या नहीं बनाए, हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। और सबसे पहले प्रोग्राम में जो चीजें एग्जीक्यूट होती है वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो देखो लिख रहा है कि अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ क्लास इज क्रिएटेड, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो आप जरूरी नहीं है कि हमने क्लास का नाम लिखा है तो कंस्ट्रक्टर हम बनाए हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जावा में आप जाइएगा, जैसे अगर आप जावा पढ़ रहे हो या जावा का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? जैसे मान लो क्लास का नाम एक्स वाई है तो आप लिखेंगे एक्स वाई OBJ इज इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बना। दिस इज कॉल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, नॉट इन सी। जावा में तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? एक्स वाई के बगल में AB लिख दिए तो ये कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्लास है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ऐसे बनाओगे। लेकिन जावा में जब आप जाएंगे तो आपने लिखा एक्स वाई OBJ इज इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई, तो एक्स वाई आपका क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड क्लास, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द न्यू, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटर यूज्ड फॉर एलोकेट द मेमोरी, एंड एक्स वाई बिकम्स द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर in C++ are dash by default: public, private, protected, more than one of the above, none of the above.
अब जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। There are 4 types of access specifiers in C++. There are 4 types of access specifiers who make the class nature as access and provide the facilities to access the limitations, जो limitations को provide करता है। तो there are 4 types of access specifiers like by default a class is private। क्लास का जो नेचर है वो क्या है, प्राइवेट है। देखो तुम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सपोज यू आर गोइंग थ्रू अ पार्क, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो एंड यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। आपके सामने 2 ऑप्शन, पहला सामने में एक पब्लिक प्लेस है, you can easily reach there, open the tap and grabs the water from there, and there you need not to take the permission from anyone. But if suppose in front of you there is a private building, एक प्राइवेट घर है और वहां भी नल का टैब है, but you are not allowed there to go and open the tap and grabs the water from there. If you are going to do so, you will be in the position to grab some punishment also along with the water. तो पब्लिक अगर उसका कोई प्लेस है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, एवरीबडी इज कैपेबल टू एक्सेस। पानी पी भी सकते हो, वहां पे थोड़ा आराम करने का मन करे तो कर भी सकते हो। द सेम वे जितने भी अभी जैसे सी और सी प्लस प्लस का जो डिफरेंस है बेटा वो समझ लो। सी प्लस प्लस का मतलब क्या है, एग्जैक्ट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड सी पल्स पल्स, और प्लस प्लस आप देखोगे लिखा रहता है ऐसे सी प्लस प्लस। तो C++ का मतलब क्या है, ये प्लस प्लस का जो मतलब है इट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप जब ऑपरेटर पढ़ते हो तो यूनरी ऑपरेटर में आपने पढ़ा होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें एक होता है प्लस प्लस और एक होता है माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल विथ 1, और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेंड और द वेरिएबल विथ 1। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, एक को कहते हैं प्रीफिक्स और एक को कहते हैं पोस्टफिक्स या सफिक्स। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 5, int i इज इक्वल्स टू 5, और अगर मान लो हम जाके यहाँ लिखते हैं i प्लस प्लस, या अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्लस प्लस आई, दोनों का डिफरेंस है, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोस्टफिक्स या इसको कहते हैं सफिक्स। ये क्या कहता है, फर्स्ट यूज द वैल्यू देन चेंज, और ये क्या कहता है फर्स्ट चेंज द वैल्यू देन यूज। यानी अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो आई के अकॉर्डिंगली यहाँ अभी 6 यूज होगा, लेकिन इसको अगर यूज करोगे तो अभी ये 5 यूज करेगा, आगे कहीं यूज करोगे तो 6 होगा। तो बहरहाल आपने यहां पे देखा C++, तो C++ का मतलब क्या हो गया, जहां तक C पे हम लोगों ने वर्क किया था उससे एक स्टेप आगे। तो C का जो कंटेंट होता था, देखो C++ को कभी भी आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते। जावा इज एन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट C++ इज नॉट अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज स्ट्रक्चर तक का जो पार्ट है, स्ट्रक्चर तक का जो कंटेंट है, जितना तक हम C में यूज करते हैं वो C++ में भी यूज करते हैं। C++ में एक ही चेंज होता है, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग डायरेक्ट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब जाइएगा तो यहाँ पे क्लास को एक्सेस करने के लिए 4 उसके स्पेसिफायर बताए जाते हैं। एक तो है प्राइवेट, जो बाय डिफॉल्ट है, अगर क्लास के साथ प्राइवेट हमने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये प्राइवेट है, तो जब तक इसके अंदर, इस घर के अंदर जो है वो इसको यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस घर के बाहर कोई जाएगा तो ही और शी विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द क्लास। लेकिन मान लो कोई पब्लिक अगर यहां हमने लिख दिया पब्लिक क्लास XY, तो पब्लिक का मतलब वो पार्क हो गया ना, कहीं पार्क में जाके टैब नल का ओपन करो, पानी पी लो आराम से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन C++। तो देखो कंफ्यूज मत करना, C++ में स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, जैसे C में स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही C++ में भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं।
तो स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा जो डाटा हमारा होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। एनीबडी इज कैपेबल टू यूज दैट, ठीक है, तो ये पब्लिक होगा। इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अब कह रहा है C++ ऑल द मेंबर, अब क्लास की बात आ गई। अब तुम बताओ, ऑप्शन है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, क्या होना चाहिए आंसर? फिर से सोचो, अभी कह रहा था कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफॉल्ट, पब्लिक है। लेकिन अब कह रहा है कि इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास, अगर वो क्लास का मेंबर है, स्ट्रक्चर का नहीं, तो क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट है ना। आपने प्राइवेट वर्ड यहां नहीं भी लिखा है तो वो प्राइवेट ही ट्रीट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर विद माई लेफ्ट हैंड्स, आई एम गोइंग टू ईट समथिंग फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड, बट बाय डिफॉल्ट आई यूज माई राइट हैंड, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। इन द स्पेशल कंडीशन आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। इन C++ व्हाट डज अ क्लास होल्ड, क्लास क्या होल्ड करता है? अरे तो क्लास क्या होल्ड करेगा, जरा सोच के बता। वेरिएबल होल्ड करेगा, मेथड्स को होल्ड करेगा। वैसे ऑप्शन दिया है एरे, तो एरे भी क्या है, एरे इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, and this is also called composite data type, or this is called referential data type. Class is also a kind of referential data type. आप नॉन प्रिमिटिव्स में जाते हो तो क्या मिलता है, क्लास, एरे और इंटरफेसेस। दूसरा है डाटा और तीसरा है डाटा एंड फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, डाटा एंड फंक्शन, जिसको मेथड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर in a class of C++ is 2, 3 और 4। तो 3 है ना, कौन कौन, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जावा में 4 होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। C++ में 3 है, कौन कौन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और सी और जावा में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। तो आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड more than 20 questions today. Hope you are capable to understand. With this all, again we are going to continue with the same zeal, with the same dedication and with the same energy. But my suggestion is for you is that every time try to solve the questions that comes in TRE1 and in TRE2. आप questions को solve करो, खुद से भी उसकी पढ़ाई करो, खुद से भी उसकी तैयारी करो, और एक क्वेश्चंस अगर है तो उस क्वेश्चंस के रूट काउजेस पे जाओ। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन वहां पे आया है वही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होगा, आप ऑलमोस्ट TRE1 और TRE2 में देखिएगा तो उसके प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस चैप्टर से TRE1 में हम लोगों ने पूछा है उसी सेगमेंट से TRE2 भी पूछ रहा है। ओनली द डिफरेंस इज दैट the pattern and the level of the question is going to be changed। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन एक और मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is used to define the member of a class externally in C++। देखिए C++ में जब आप मेंबर्स को एक्सेस करते हो या मेथड्स को एक्सेस करते हो तो वहां दो चीजें होती है, एक को हम लोग कहते हैं इनसाइड द क्लास और एक को हम लोग कहते हैं आउटसाइड द क्लास। जैसे अगर क्लास के बॉडी के अंदर कोई फंक्शन है और उसको आप एक्सेस कर रहे हो तब तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके फंक्शंस को मान लो हमने यहाँ पे केवल डिक्लेयर किया और यहाँ सेमीकोलन दे के यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेट, मतलब फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड हियर बट वी वांट टू यूज इट आउटसाइड द क्लास। तो वहां पे एक ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन भाई पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ अ क्लास externally in C++, so that is called a scope resolution operator. So I think so you don't have any doubt, you don't have any confusion. Wish you all the very best, and still we are going to discuss the questions first,
Then after we are going to start the classes, and it will help you more, because in the starting of my class what I have suggested you, मैंने आपको सजेस्ट यही किया कि इसकी तैयारी करने के पहले आपको इसके सिलेबस और इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, और इसको अगर आप जान लेते हो तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से अचीवेबल हो जाएगी. विद दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडेज class. Thank you very much. With the same hope, with the same zeal, again very soon we are going to continue with the next set of questions. And for that, till that, good night. Thank you very much. Okay. तो किए हैं.